secession, doesn't want to leave the Union of India. I believe, you may disagree with me, I believe they want more autonomy. Now, whether you want to give them autonomy or not is the government's prerogative. But I believe they want autonomy. Now, what are you doing by repealing Article 370? I fear, I genuinely fear, Honorable Home Minister, I genuinely fear you're pushing the thousands and thousands of young men from this column to join the other column of a few hundred. I sincerely hope it will not happen, but if it happens, you will rue this day, when you repealed Article 370. Sir, the second thing you're doing is, you're dismembering a state. You think you're doing it to Jammu and Kashmir. But what you're doing to Jammu and Kashmir, using these provisions, misinterpreting these provisions, in fact, I could go to say mischievously interpreting these provisions, what you are doing to Jammu and Kashmir can be done to any other state. Yes, correct. Please tell me why the mechanism that you have devised to dismember Jammu and Kashmir will not apply to any other state. Please convince us that Derek O'Brien and I are wrong. All you have to do is dismiss an elected government, dissolve the state legislature, promulgate President's rule, declare Parliament to be the state legislature for the time being, and divide that state. My friend from Orissa, I told him, what stops a future government from carving out a union territory for the KBK districts? What stops a future government from creating a union territory or a new state in North Bengal? What stops a future government from dividing Tamil Nadu? My friends from the AIADMK are here. They don't realize what you're doing. The same provisions, the same method, the same resolutions can be applied to any state. But I think in doing it for Kashmir, you've made a fatal legal error. I won't tell you what the legal error is now. You will discover it in due course. But my greater concern is what you're doing today sends a very, very wrong signal to all the states of this country. Sir, all I can do is appeal to the Honorable Home Minister. Even at this late stage, stop, pause, reflect on what we are doing. If you're determined to repeal Article 370, I can do nothing about it. It's between you and those who want Article 370 and the Supreme Court of India. But the other thing that you're doing, dismembering Jammu and Kashmir, for heaven's sake, in the name of the people of India, I appeal to you, don't do that. Don't dismember that state. It's one state. It came to us as one state. I don't want to recall history or those tall personalities who brought Jammu and Kashmir to accede to India. Some names continue to reverberate. Sardar Vallabhbhai Patel, V.P. Menon, Gopal Sami Iyengar. They brought Jammu and Kashmir under an instrument of accession. That is history. That is a historical document. It's as important as the Constitution of India. But if you wish to ignore history, if you wish to ignore the compact made with Maharaja Hari Singh,
If you wish to ignore what Sardar Vallabhbhai Patel was able to achieve in those difficult days, it's your privilege. Do what you like. What you're doing is wrong. What you're doing is wrong. Repealing Article 35A is wrong. Amending the Constitution, invoking Article 370 is wrong. Doing away with Article 370 is wrong. But do all those wrongs. Do all those wrongs. I'm willing to, who am I? I'm willing to tolerate all those wrongs. But for heaven's sake, don't dismember Jammu and Kashmir. Don't do that cardinal sin. Don't commit that monumental blunder. Sir, shortly after I was born, this country became free. This country is free, democratic, republican, liberal, secular. All of us who are below the age of 70, all of you who are below the age of 70, were born in such a country. Today I despair. How long will this country remain the country envisaged by the founding fathers of our Constitution? How long will it remain truly free, truly democratic, truly republican, truly liberal, truly secular, and truly a union of states? India, that is Bharat, is a union of states. What you are doing is destroying that union of states, and what you do today will have catastrophic consequences in the future. If you know what you're doing, do it. If you know what you're doing, do it. But please remember, you will bear responsibility for the catastrophic consequences of this action. I stoutly oppose what the government is doing, and we will sit here, listen to you, and vote against what you're doing. Thank you, Mr. P. Chidambaram. Please. Sri Prashant Nanda. Thank you, sir. This is a memorable day, and this memorable day, waited for 19 years, when Honorable Atal Bihari Vajpayee became the Prime Minister. बहुत ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए जो आज मोदी सरकार ने लिया है, और कश्मीर समिति दिल्ली की तरफ से मैं भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो समीर जी, अब लगता है कि इस कदम के बाद कश्मीर का सही विकास हो पाएगा और आतंकवाद का जो है वो खात्मा होगा? बिल्कुल, जो मोदी जी का है सबका साथ, सबका विकास, और आज उन्होंने एक और स्लोगन उसमें सबका विश्वास। मुझे लग रहा है आज मोदी जी ने केपी कम्युनिटी का विश्वास भी जीता, और वो हमेशा ये बोलते हैं 130 करोड़ भारतीय, तो उनका विश्वास उन्होंने आज जीता है। भारत आज आज़ाद हुआ है। 1947 में भारत आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन आज के इस डिसीजन से जो निर्णय लिया आज भारत सरकार ने, मुझे लग रहा है आज के दिन भारत को आज़ादी मिली है। आपने कहा भारत को आज के दिन आज़ादी मिली है, तो जो माइग्रेटेड कश्मीरी पंडित थे वो जो दूर जाकर बस गए थे, क्या अब वो वापस कश्मीर की तरफ रुख करेंगे? इस तरीके की कुछ देख रहे हैं आप? देखिए, कश्मीरी कम्युनिटी जो पिछले 30 साल से अपने ही मुल्क में, अपने ही इस अलग अलग प्रांत में जो देश के वो विस्थापितों की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हमारे लिए धारा 370 बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन आज जो केपी कम्युनिटी अपने 30 सालों की स्ट्रगल में, हमारे लिए कश्मीर में अभी कुछ नहीं है। केपी कम्युनिटी जाएगी तो अपने शर्तों के साथ जाएगी, क्योंकि हमारे बहुत सारी समस्या है। अनएम्प्लॉयड यूथ है, बेरोजगारी है, जो ट्रेडर्स थे वो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और मुझे लग रहा है पिछले 30 साल से हम भारत सरकार से ये डिमांड करते आ रहे हैं
कि हमारे को अगर बसाना है तो सेपरेट होमलैंड में बसा दो, और जहां पर जो यूटी स्टेटस विद यूटी स्टेटस वहाँ पर मिलना चाहिए, जैसे दिल्ली में है, जैसे और जगहों पे है, वहाँ पर जहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लो करे। तो हमारी डिमांड यही है भारत सरकार से। तो अब जिस तरीके से कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो जहाँ पहले 370 आर्टिकल की वजह से नए जो कानून थे नहीं बन पाते थे, अब लगता है कि अब कानून जो है वहाँ बन पाएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि ये बहुत निर्णायक और ऐतिहासिक कदम है जो आज केंद्र सरकार ने लिया है, और हो सकता है, संभावना है कि जो पहले वहाँ पर कानून थे वो इससे खत्म हो जाएंगे और फिर से वो बहाली आ जाएगी वहाँ पर कि जहाँ पर एक आम नागरिक बस सके। तो जम्मू कश्मीर पर मरकज ने तारीखी फैसला लिया है। आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आज सुबह से ही न्यूज 18 उर्दू की नजर इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। जाहिर सी बात है, अभी कुछ देर पहले राज्यसभा में पी चिदंबरम जो कि सीनियर लीडर हैं कांग्रेस को, उन्होंने कहा कि जो फैसला लिया गया है ये वक्ती तौर पर मरकजी सरकार की एक बड़ी फतेह हो सकती है, लेकिन हमारी जो नस्लें हैं वो इस तरह के फैसलों को माफ नहीं करेंगी। इससे पहले राज्यसभा में कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ इस इशू पर और मरकजी सरकार के इस फैसले पर कहा है, उनका पूरा बयान हम आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज एक झटके में 3-4 चीजों को खत्म कर दिया जो हिंदुस्तान की तारीख में काले शब्दों से लिखा जाएगा। एक तो आर्टिकल 370 को खत्म किया, और आर्टिकल 370 के साथ साथ उससे 35A भी खत्म हो गया। तो आर्टिकल 370 भी खत्म, 35A भी खत्म, और उसके साथ जैसा कि इतना काफी नहीं था उस स्टेट को बर्बाद करने के लिए, उसके साथ से स्टेट को डिवाइड भी किया। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया, और जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, और जम्मू और कश्मीर में अब गवर्नर नहीं होगा, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, गवर्नर भी नहीं। यह तो कभी सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था कि एनडीए गवर्नमेंट यहां तक जाएगी कि जम्मू कश्मीर स्टेट का नामो निशान खत्म कर देगी। तो कांग्रेस लगातार इस अहम फैसले पर तनकीद कर रही है, और इस बीच बेंगलुरु के हमारे नुमाइंदे रऊफ हल्लुरु ने शहला रशीद से इस पूरे इशू पर तफसीली बातचीत की है, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। कश्मीर के मुतल्लिक लिए गए तारीख़ी फ़ैसले के सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की जनरल सेक्रेटरी शहला रशीद। प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। क्या कह रही हैं मैडम आज के इस फैसले पर? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है जो फैसले का कंटेंट है, यानी जो उसके अंदर लिखी गई है चीज़ें। दूसरा है जिस तरीके से फ़ैसला लिया गया। तो पहले हम इस पे बात करते हैं कि फ़ैसला किस तरीके से लिया गया है। लोगों का गला घोंट के, लोगों की आवाज़ को दबा के, इंटरनेट, फ़ोन सब बंद है। सभी सियासी लीडरान जो हैं वो इस वक्त हाउस अरेस्ट में हैं। कश्मीर से कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, वो रिएक्शन भी नहीं दे सकते हैं इस मामले पर। और इस वक्त में जिस टाइम इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, जिस टाइम पे कोई असेंबली नहीं है, प्रेसिडेंट रूल है स्टेट में, उस वक्त ये फैसला लिया जा रहा है। तो फैसले को लेने का जो तरीका है वो पूरा गलत है। वो ये दिखाता है कि हुकूमत को, मरकज़ी हुकूमत को ये एकदम एतबार था कि अगर वो सही तरीके से जाएं, अगर वो असेंबली के ज़रिए जाएं तो उनका ये ऑर्डर पास नहीं होना था। ये ऑर्डर जो है ये गैर कानूनी है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर संवैधानिक है। हम लोग इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। मरकज़ी हुकूमत ये कह रही है कि ये जम्मू कश्मीर के हक़ में फ़ैसला है, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। अगर जम्मू कश्मीर के हक़ में फ़ैसला है तो पूरे जम्मू कश्मीर को बंद क्यों रखा गया है? जम्मू में इंटरनेट बंद है, कश्मीर में इंटरनेट बंद है, सब जगह फ़ोन लैंडलाइन बंद है। अगर मरकज़ी हुकूमत को अपने इस फ़ैसले पर इतना ही एतबार है, इतना ही अगर उनको भरोसा है अपने इसके लीगैलिटी पर, तो इंटरनेट चलाएं, हमारे सियासी लीडरों को बयान देने दें, उनको जो है हाउस अरेस्ट से रिहा करें। देखिए कि वो क्या कहते हैं। कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा
प्रॉब्लम रहा है जम्मू कश्मीर में। शायद इसी के पेश नज़र प्रिकॉशनरी मेजर्स हुकूमत ने ये कदम उठाए होंगे। क्या आपको ये नहीं लग रहा? लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हमेशा जो है जम्मू एंड कश्मीर में वो गवर्नमेंट ही क्रिएट करती है। हर बार ऐसा कोई फ़ैसला आता है, आप अगर 2008, 9, 10 के एजिटेशंस को देखें, उनके पीछे कोई ना कोई फ़ैसला हुकूमत का, कोई ना कोई फेक एनकाउंटर, कोई ना कोई रेप इंसिडेंट होता है जब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ अगर आप देखें कश्मीर में आर्म्ड इंसर्जेंसी यानी जो बंदूक लेके जो मूवमेंट थी, बंदूक बरदार जो थे, उन्होंने 96 में उन्होंने हथियार छोड़ दिए थे। वो लोग जो हैं जैसे यासीन मलिक साहब है, वो तो गांधीयन रास्ता इख्तियार करके अब पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की बात करते हैं। तो इंसर्जेंसी बहुत पहले ख़त्म हो गई थी, यानी बंदूक बरदार जो है वो बहुत पहले उन्होंने हथियार छोड़ दिए थे। अब अचानक से क्यों बढ़ा है? ये बढ़ा है जब से बीजेपी मरकज़ में आई है, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। उन्होंने जिस तरह से लोगों को सताया है, गवर्नमेंट्स को क्रश किया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को वाइप आउट किया है, उनको चबा करके फेंक दिया है और पूरा एक रिप्रेजेंटेशन जो है लोगों की वो ख़त्म कर दी है। और अब जो हो रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। उससे और उधर जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के सदर शाह फैसल ने मरकजी सरकार के इस फैसले को एक धोखे से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि जो तरीका है उस तरीके पर सवाल उठते हैं। उनका पूरा बयान सुनिए। धोखा किया गया। आज हमारे साथ काफ़ी दिनों से बात की जा रही थी कि इन प्रोविजंस के साथ कुछ नहीं किया जा सकता, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग जिन लोगों को भी है वो ये मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल्स को हटाना किसी के बस में भी नहीं है। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादती करे, इलीगल तरीके से इन चीज़ों को ख़त्म करे, उसमें फिर नाइंसाफ़ी का जो पहलू आता है, और जब भी किसी कौम के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है वो कौम कभी खामोश नहीं रहती है। मैं अपील करना चाहूँगा पीपल ऑफ इंडिया को, और जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में इस टाइम बैठे हुए हैं, खासकर जो इस वक्त राज्यसभा में बैठे हुए हैं, अपोजिशन के सारे मेंबर्स से मैं एक अर्जेंट अपील कर रहा हूं कि एक मौका आया है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सबवर्जन को बचाने के लिए। ये तारीखी क्लॉजेज हैं, आर्टिकल 370 को इस तरह से नहीं हटाया जा सकता। इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट नहीं कर सकती है एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको मेजॉरिटी हासिल हुई है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक नया चैप्टर खुलेगा यहाँ पर, और शायद कुछ भी नहीं बचेगा आज के बाद। इंडिया और कश्मीर के बीच का जो रिश्ता है शायद वो एक डिफरेंट लेवल पे चला जाएगा। कागज़ों पे शायद वो आप जिस तरह से भी चाहें उसको मैनिपुलेट करना, लेकिन शायद वो बात आज लोगों के दिलों से निकल जाएगी। और यहाँ पे जिस तरह की जानी और जिस तरह का जहनी नुकसान हो सकता है उससे शायद आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं जिस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इस रेजोल्यूशन को अपोज कीजिए, और पूरे मुल्क के जो सोचने समझने वाले लोग हैं उनसे मैं अपील करता हूं इस रेजोल्यूशन को अपोज कीजिए। मैं कश्मीर के लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि ये एक बहुत ही बड़ा नाजुक मौका है हमारे लिए। आप भी होश में, आप भी बहुत ही एहतियात से काम लीजिए। इस वक्त जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि हमारे खिलाफ फोर्स यूज़ करके शायद हम सबको ख़त्म किया जाए, हमारी शनाख्त तो पहले ही ख़त्म की जा चुकी है। और चलिए इस पूरी खबर को लेकर दिल्ली में आखिर क्या कुछ हलचल है, क्योंकि इस पूरी खबर ने एक तरह से पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। और खासतौर से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों में काफी तजब्जुब था कई दिनों से, और जम्मू कश्मीर की पूरी सियासत एक तरह से दिल्ली में डाइवर्ट हो गई थी। और आज सुबह से ही जो एक सियासी माहौल बना हुआ था उसके असरात इस वक्त क्या कुछ है दिल्ली में, सीधे हम बात करेंगे। मेरे नुमाइंदे मेरे साथ मेरे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त जुड़े हुए हैं। शंकर, दिल्ली में क्या कुछ हलचल है? आज सुबह से ही हमने देखा कि इस खबर को लेकर एक सस्पेंस बरकरार था, लेकिन जब सस्पेंस ओपन हो चुका है, तमाम जो राज हैं वो एक तरह से खुल चुके हैं, तो इस वक्त दिल्ली में हलचल क्या कुछ है? देखिए, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस एरिया इलाके में हूँ, और यहाँ पर कई लोग, कई जो युवा हैं वो ढोल बाजा लेकर यहाँ पर इस मामले में एंजॉय कर रहे हैं। ढोल तिरंगा लेकर यहाँ पे आए हुए हैं, और अभी थोड़ी देर के बाद जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट के आसपास में भी कई लोग अब फ्लैग लेके, इंडियन फ्लैग लेके वहाँ पे आके जश्न मनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन यहाँ पर तमाम जो युवा है उनको भी समझाया जा रहा है कि कहीं भी जोश में होश न खोएं, और आपसी जो भाईचारा है उसको बनाए रखने के लिए। और यहाँ पर जो आज तिरंगा यात्रा निकालने का यहाँ पे कई युवाओं का तैयारी है, और इसके लिए बाकायदा कई जगह पे परमिशन मांगा जा रहा है। लेकिन राजधानी दिल्ली में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी चुस्त दुरुस्त की गई है, और इसके लिए जो पुलिस बल को विशेष तौर पर अलर्ट किया गया है कि कम से कम आने वाले जो 15 दिन है, 15 दिनों में सुरक्षा व्यवस्था पे खास ख्याल रखा जाए। और इसके साथ ही कई राज्यों में भी जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं वहाँ उनको अलर्ट किया गया है
कि कोई भी ऐसी जो माहौल जो है कहीं पे शांति भंग नहीं होनी चाहिए, और इस मामले को ध्यान में रखते हुए आगे विशेष अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज जम्मू कश्मीर के मसले पर जिस तरह से आज एक बड़ा फैसला लिया गया है केंद्र सरकार का, उसको लेकर राजधानी दिल्ली में खासकर जो तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है, और कई युवा जो हैं वो अपना तिरंगा लेकर इंडिया गेट की ओर आ रहे हैं। बहुत लोग कनॉट प्लेस में आ रहे हैं, और अभी भी हमारे पीछे आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर ढोल और बाजे के साथ में जो युवा हैं वो आए हुए हैं, और भारत माता की जय और इस तरह से नारेबाजी हो रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में कुछ अलग सा माहौल है, लेकिन निश्चित तौर पे जम्मू कश्मीर का माहौल कुछ अलग होगा। और जम्मू कश्मीर के मसले पर आज राजधानी दिल्ली में ये खुशियां मनाई जा रही हैं। जी बिल्कुल शंकर, ये तो आम लोगों की बातें हैं जो जैसा कि आपने कहा कि खुशियां मनाई जा रही हैं, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन अगर सियासी गलियारों की हम बात करें तो दिल्ली में सियासी गलियारों में किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे सियासी गलियारों की जो आज आबो हवा है कुछ अलग से है। कई जो राजनीतिक पार्टी है वो इस मामले पर बाकायदा अपना समर्थन भी जता रही है, लेकिन कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं, चाहे जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू जो कि केंद्र सरकार में एक सहयोगी दल के तौर पे कार्य कर रही है, लेकिन जेडीयू जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ गई, यानी बीजेपी सरकार के खिलाफ गई, और इस मामले पे वो उस मामले पे भी बाकायदा उसके बयान आ रहे हैं। जेडीयू की बात करें तो नीतीश कुमार इस पार्टी के चीफ हैं, और उसी पार्टी आज जिस तरह से बाकायदा पूरे इस फैसले के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने वोटिंग किया है और बयानबाजी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस मामले पर वो भी बीजेपी आगे देख रही है, और इस मामले पे भी आगे राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो चलता रहेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी, बीएसपी पार्टी, वो भी बीजेपी सरकार के समर्थन में आज वोटिंग की है और उनके समर्थन में आ खड़ी हुई। तो कहीं कहीं पूरा एक तरह से कह सकते हैं मिला जुला रूप जो है वो देखने को मिल रहा है इस मसले पर। लेकिन अब विपक्षी पार्टियां वो अब इस मसले पर आगे की रणनीति बना रही है कि आगे इस मसले पर किस तरह से देखना है, किस तरह से बाकायदा सरकार को घेरने की तैयारी है। लेकिन अभी तक इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि लोकसभा में लगभग में पूर्ण बहुमत में है, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में। शंकर आनंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है कि इस खबर पर चार जानिब से रद्द-ए-अमल आ रहा है, लेकिन इस वक्त राज्यसभा में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि लगातार इस मुद्दे पर बहस हो रही है। सीधे राज्यसभा आपको लिए चलते हैं, यहां पर देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इस इशू को लेकर। खत्म हो रही है 370 धारा, अब आतंकवाद पर हो जाएगा जबरदस्त मारा। भारत जिंदाबाद का अब वहां गूंज जाएगा नारा, और जाग जाएगा जम्मू कश्मीर सारा। तो सर, ये जो आज का बिल है, ये बहुत दिन पहले ये बिल आने की आवश्यकता थी। एक तो भारत को जब आजादी मिली 1947 में, तो सब लोग इतिहास जानते हैं कि हरि सिंह राजा के कब्जे में ये इलाका था, और अचानक पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया और कश्मीर का 1/3 इलाका अपने कब्जे में ले लिया। तब हरि सिंह राजा और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी में जो मतलब बातचीत हुई, एग्रीमेंट हुआ, उसके मुताबिक मतलब जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने का निर्णय हो चुका। और आप लोग जानते हैं कि तब गोपाल स्वामी अयंगार जी ने संघीय संविधान सभा में धारा 306A, जो बाद में धारा 370 पर बनी, इसका प्रारूप मतलब किया था, और इसीलिए जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से अलग अधिकार में मिला था। तो मुझे लगता है कि ये क्या है अधिकार, तो भारत के अन्य राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। वित्तीय आपातकाल लगाने वाली धारा 360 भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा है। भारत की संसद जम्मू कश्मीर में रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा कोई अन्य कानून नहीं बना सकती है। धारा 356 लागू नहीं होती है। राष्ट्रपति के पास जो संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं। कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहरी से शादी करती है तो उसकी कश्मीर की नागरिकता छीन जाती है। इसी तरह मतलब जो बंधन है
तो 300 धारा को खत्म करने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को भारत से जोड़ना है, भारत से तोड़ने का ये काम नहीं है। और मैं कांग्रेस पार्टी से अपेक्षा करता था कि भाई कांग्रेस पार्टी इसका सपोर्ट करेगी, लेकिन अभी इसका विरोध करने से आपको वोट मिलने वाला ही नहीं है उधर। मतलब कांग्रेस पार्टी को अगर देश की एकता के लिए यहाँ कोई मतलब इस 370 धारा लगाकर या मतलब वहाँ जो यूनियन टेरिटोरी का निर्णय लेने के बाद उनको भारत से अलग करने की भूमिका नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह की नहीं है, तो वहाँ का आतंकवाद खत्म होना चाहिए, वहाँ के लोगों की रक्षा होनी चाहिए, वहाँ की इकोनॉमी डेवलप होनी चाहिए, वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए और भारत के साथ जम्मू कश्मीर में हमेशा के लिए रहना चाहिए। इसी तरह मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है, लद्दाख में बुद्धिस्ट ज्यादा है, जम्मू में हिंदू ज्यादा है और कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा है और हमारी सरकार मुस्लिमों का विरोध नहीं करती है। कश्मीर हमारा तो सिर है, एक सिर हमारा तोड़ने का काम पाकिस्तान ने किया है, हमारा 1/3 सिर उन्होंने तोड़ा है और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी ये तो निर्णय हो चुका है, 370 कलम लगाकर जम्मू कश्मीर लद्दाख को भारत से जोड़ने की मतलब एक प्रक्रिया जो है ये एनडीए सरकार ने पूरी की है, मोदी सरकार ने पूरी की है। इसीलिए उनके ऊपर कोई अन्याय बिल्कुल नहीं है और वहाँ के लोगों पर बिल्कुल अन्याय होगा नहीं। वहाँ टाटा, बिरला, मफतलाल, बजाज ऐसे लोगों को बताएंगे कि वहाँ जाइए, कारखाने निकालो और वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। इसी तरह का काम हम चाहते थे और राम गोपाल जी आपसे भी अपेक्षा थी कि आपने इधर सपोर्ट करने की आवश्यकता थी। बहुजन समाज पार्टी ने सपोर्ट किया, आपकी क्यों नहीं कर रहे? मतलब बीएसपी का और हमारा ज्यादा नहीं जमता है, थोड़ा आपसे थोड़ा जमता है, लेकिन आपने सपोर्ट, ठीक बात है। तो इसीलिए थोड़ा जल्दी, मतलब आपका कहना है कि भाई ये थोड़ा बिल आपने जल्दी क्यों लाया, तो जल्दी काम नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मतलब जल्दी काम करना है तो 2 दिन बाकी है और इसीलिए बिल लाया है इसको कि किसी को मतलब अलग रखने की बात बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए जो मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है और बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के मुताबिक ही ये मतलब जो नया कानून है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नया कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को दे दिया है और उसके मुताबिक इस कलम को हटाकर जम्मू कश्मीर को मजबूत करने की भावना से ये बिल लाया है। या कोई पांडेचेरी को तमिलनाडु में जोड़ने का विषय बिल्कुल नहीं है। तमिलनाडु पांडेचेरी को मतलब अलग स्टेट का दर्जा दे दिया है। अभी यूनियन टेरिटोरी वहां करने से और वहां के लोगों की रक्षा करने के लिए, वहां का आतंकवाद खत्म करने के लिए ये निर्णय ले लिया है। इसीलिए मैं इस जो बिल लाया है अमित शाह जी ने, इसका मैं मेरी पार्टी की तरफ से पूरा सपोर्ट करता हूं और कांग्रेस पार्टी को अपील करना चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद जी वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में उनका बहुत ऊपर का पद है और अभी अध्यक्ष के बारे में आज का दिन ऐतिहासिक तौर पे मना रहे हैं। लगा लो भाई, तुम लोग लगा लो। देखिए आज भैया रुक जाओ थोड़ा। देखो आज 5 अगस्त 2019 ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन बन गया है। जब से भारत का बंटवारा हुआ तब से जो मुद्दा चल रहा था करोड़ों भारतीयों के मन में, आज उसका निदान करने के तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जो दूसरी बार आई है, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने वो काम कर दिया है जिसका इस देश को वर्षों से इंतजार था, 70 वर्षों से इंतजार था। और आज हमारे पास शब्द कम हैं, भाव ज़्यादा हैं। जिस प्रकार से देश में खुशियां मन रही हैं, हम उन सभी लोगों को, जो लोग इसको राज्यसभा में सपोर्ट किए हैं, उन सभी लोगों को, और जो बाहर सपोर्ट कर रहे हैं, सब जाति धर्म से ऊपर उठकर, अभी देख रहे थे मेरे लड्डू हमारे हाथ से हमारे
मुस्लिम समाज के भाई भी खा रहे हैं, हिंदू समाज के भाई भी खा रहे हैं, ईसाई समाज के भाई भी खा, सभी लोग एक भारतीयता और उसका एक प्रदर्शन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को ये देश इस बात के लिए बधाइयां दे रहा है कि जो आपने कहा कि एक राष्ट्र, वन नेशन ग्रेट नेशन, वो जमीन पे अब दिखाई देने लगा है। और अब मैं तुरंत वापस जाऊंगा लोकसभा में, कभी भी हमारे गृह मंत्री जी आ सकते हैं। हमारे पता चला कि हमारे कार्यालय पे आज इतने लोग आए हैं तो मैं लोकसभा से भागा मिलने आ गया, और थोड़ी बारिश हो रही है तो एक आध पटाखा भी चल गया। That could not happen. Subsequently, I am happy the House again, all parties have realized and they are all expressing their viewpoint. So, though the time is over, now I have decided that I will give some time to some of the people who want to speak now. And of course, I got some names like important name like Kapil Sibal from Congress. And if any other person is left out, they can send not 4 or 5 people from the same party. If any party, any individual, any group is left out, they can send a slip to me. I will go through it also. And then 1 or 2 ministers also want to speak. If at all we give permission, that I will call them also. Now we will take up Sri Kapil Sibal. Thank you, Mr. Chairman, for giving me this opportunity. You will have 7 to 8 minutes. Yes, sir. I will finish in 7 to 8 minutes. That's what you suggested. That's why I agree. Yeah, very kind of you, sir. Very kind of you. Sir, today is not a day to go back into history. Today is also not a day when we should be talking about law. Because today is a day when we should be thinking about why we are here, what the Constitution makers thought when they framed this Constitution. Why are we a democratic nation? What should democracy involve? These are questions that we need to ask ourselves today. So I know that the bill will be passed because you have manufactured a majority. And therefore we can do nothing about that. And while you call this a moment which is historic, only history will judge whether it was historic or not. क्योंकि इतिहास बताएगा कि क्या ये इतिहास पे धब्बा था, क्या संघीय ढांचे पे धब्बा है, क्या हमारे संविधान की रूह को आपने खत्म की कोशिश करने की कोशिश की। ये फैसला अब इतिहास करेगा। मुझे याद है, इतिहास की बात है कि हम समझते हैं कि पंडित नेहरू जी की वजह से कश्मीर हमारे पक्ष में आया। अगर रैटक्लिफ अवार्ड न होता, गुरदासपुर हमारे पास नहीं दिया जाता और जो मेजॉरिटी का प्रिंसिपल था उसको अपनाया जाता तो शायद कश्मीर हमारे पास कभी आता ही नहीं। लेकिन असलियत तो ये है कि रैटक्लिफ अवार्ड के द्वारा गुरदासपुर हमें मिला, वो लिंकेज हमें मिला और उसकी वजह से जम्मू कश्मीर भी हमारे पक्ष में आया। और मुझे याद है उस समय सरदार पटेल साहब होम मिनिस्टर थे, धारा 370 तो वही लाए यहां, सरदार पटेल साहब भी धारा 370 लाए। तो उस समय जो चर्चा हो रही थी, सरदार पटेल साहब तो कश्मीर पाकिस्तान को देने के लिए तैयार थे, लेकिन my suggestion is, Sibal ji, my suggestion is, like Jawaharlal Nehru. Let me just finish. एक मिनट बैठ जाए, मैं समझाऊंगा, बैठ जाइए. Like Jawaharlal Nehru, even Sardar Patel ji also was our first deputy prime minister. Better we avoid the controversy about that, because you know more there, and then again. I'm just saying this is part of history. I'm not saying anything myself. So then they will try to say something else. Leave it. You go to other issues. I don't want to waste the 2-3 minutes that I have. Please. So it was because ठीक है.
Sardar Patel was clear that Junagadh must come to India, even though the ruler was Muslim and he wanted to go to Pakistan. Sardar Patel was clear, and because of the fact that the Kashmir ruler wanted to come to India, that is why because of Nehru ji, that this happened. But now that we won Kashmir, the point that I was making us, the Congress people won Kashmir. There can be difference of opinion. Let us leave it. Please. We are almost concluding the debate. One second. I have not yielded. He has not yielded. I have not yielded. बाद में मौका दूंगा आपको. I have not yielded. भूपेंद्र जी ऐसा नहीं. My suggestion is, Kapil ji, you are a very senior person. Please move on. Otherwise यही होगा. I have said that we won Kashmir. Today you have lost Kashmir. Right. That is the point, sir. That is your point. Okay. We won Kashmir. You have lost Kashmir. Yep. How many people will you name as individual terrorists under UAPA in Kashmir? मैं आपको मौका दे रहा हूँ ना, चिंता मत करिए. That is what's going to happen. Nothing is going to happen. Sir, what? Sir. राजू, क्या बात? प्रोफेसर को प्लीज नहीं दिस नॉट बैठ जाइए. रामनाथ जी बैठ जाइए प्लीज. नहीं दिस नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड. नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट whoever I permit. Bhupendra Yadav, please sit down. You can raise point of order afterwards. Just let him conclude. कहने की बात यह है कि संविधान के प्रति और लोकतंत्र के प्रति आप एक बिल ऐसा ला रहे हो सुबह 11 बजे और फिर कहने जा रहे हो कि हम उस पर चर्चा करें, जब हमें मालूम नहीं कि बिल में लिखित क्या है. और ये आप कहते हो कि लोकतंत्र, ये इसको हम लोकतंत्र कहते हैं. ये लोकतंत्र का डेफिनेशन है कि बिना बताए सुबह 11 बजे आप बिल ले आओ और फिर कहो कि आप इस पर चर्चा करो और तय करो और अच्छी डिबेट होनी चाहिए. डिबेट अच्छी कहां से हो जब आप हमें बताएंगे ही नहीं कि बिल में क्या रखना है, कोई नोटिस नहीं देंगे, उस पर चर्चा हम क्या करेंगे? आपको मालूम है कि चर्चा करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके पास नंबर हैं. आप चर्चा चाहते ही नहीं. इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो कानून के खिलाफ है, लेकिन उसके बारे में जाना नहीं चाहता. आज केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह डिबेट पॉसिबल कैसे है, इस पर हम चर्चा क्या करें. और दूसरी बात यह है कि आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? आपने कभी किसी से सलाह की? वहां के स्टेक होल्डर्स के साथ सलाह की? वहां के मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर के साथ सलाह की? हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सलाह की? ऑपोजिशन के साथ सलाह की? आप एक 370 धारा खत्म करने जा रहे हो, सलाह के बिना खत्म करने जा रहे हो. प्लीज. क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पास नंबर हैं, आपके पास आंकड़े हैं, हाउस में आंकड़े हैं. ये आपका मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब यही है. आंकड़ों से डेमोक्रेसी चलेगी. राइट. सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास की आप बात करते हो तो ये विश्वास रख रहे हो हमारे प्रति आप. ठीक है. ये विश्वास रख रहे हो आप हमारे प्रति. प्लीज. और ये साथ दे रहे हो आप, मतलब कि आप अकेले चलोगे क्योंकि आपके पास आंकड़े हैं और देश को पीछे छोड़ दोगे. कल तो आप किसी भी स्टेट के जो बाउंड्रीज हैं आप बदल सकते हो. ठीक है. किसी भी स्टेट की आप बाउंड्री बदल सकते हो और किसी भी स्टेट को आप डिसोल्यूशन करके उसकी असेंबली को डिसॉल्व करके कोई भी टेरिटरी किसी के साथ भी मिला सकते हो. और ये 11 बजे बिल आप ला सकते हो. दूसरी बात सर, मैं 6 मिनट भी नहीं हुए सर. दूसरी बात मैं आपसे केवल इतना ही आग्रह करूंगा कि सर कई ऐसे Right. Sir. Let him conclude. Then we can. Ready, Mr. Reddy. Let him conclude. It was based on Sri Krishna Committee report. I am a witness. Sri Krishna report was there. Kapil ji, please conclude. Krishna report. Kapil ji, it is sanity. Based on Sri Krishna report. I am also a witness. मैं केवल इतना ही संकेत देना चाहता हूं कि ये अगर आप समझते हो कि ऐतिहासिक दिन है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में कई ऐसे ऐतिहासिक दिन आगे भी आने वाले हैं. जिस तरह से आप नेशनल रजिस्टर की बात कर रहे हो, सिटीजन्स की बात कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आप एक ऐसे एजेंडे से चलें जो संविधान की बुनियाद को खत्म कर दे.
Thank you. आज के दिन What is it Vijay Reddy was saying? ये जो आप कदम उठा रहे हो, ये संविधान की बुनियाद को खत्म करने जा रहा है। और हम आज आपको संकेत देना चाहते हैं, आज आपको संकेत देना चाहते हैं कि हम खड़ा होकर इस संविधान की रक्षा करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। Right. बहुत बहुत Okay, thank you. What is Mr. Reddy? Mr. Reddy, please, माँ, मैडम, आप बैठ जाइए। आप चिंता मत करिए, यहाँ तो दो मिनट में संविधान इधर उधर नहीं होने वाले। आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देश में बुद्धिमान लोग की संख्या कोई कमी नहीं है, सबको इतिहास क्या है मालूम है। इसलिए हम लोग इस डिबेट में कुछ ने कुछ कहा, इसलिए तुरंत उसके ऊपर रिएक्ट करना ऐसा कोई जरूरत नहीं। व्हाट इज मिस्टर रेड्डी, व्हाट यू आर सेइंग? यू आर सेइंग सम क्वेश्चन? विजय साई रेड्डी, I am told you have spoken. What is your question you are asking? Sir, today morning, your good self has waived all the relevant rules and allowed this subject, sir. Derek G, when he was speaking, he said you have circumvented. It is not the circumvention. It is your good self has waived it. So that circumvention is not a correct word. So that has to be expunged and it has to be replaced with waiver. Right. Okay. Srimati Nirmala Sitharaman. Bhupendra, if you have point of order, otherwise not to reply. Reply is bad. सर 238(4) है, कोई भी सदस्य जब सदन में अपना कोई विषय रखता है तो विषय इस प्रकार का नहीं जाना चाहिए कि वो काउंसिल की कोई ओपिनियन बने। कपिल सिब्बल जी सदन के एक विद्वान सदस्य हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि भारत की एकता के प्रतीक और भारत रत्न सरदार पटेल जी का भारत की एकता में बड़ा योगदान रहा है। ये कोई काउंसिल का एक्सप्रेशन नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड है तो गुलाम नबी जी बता सकते हैं, लेकिन हम सदन के नाते उनके प्रति जो ये वक्तव्य किया गया है इसकी भर्त्सना करना चाहते हैं, उसको निकाला जाए। प्लीज निर्मला जी, श्रीमती निर्मला सीतारामन, प्लीज। नो, I have not allowed you also. Because you raised it and you quoted a rule. I was going through it before my response, you started responding to him. I suggest to the members not to respond to each other. If you have problem, please seek my permission, then I'll... Ma. So thank you very much, sir, for giving Minister. Thank you very much for giving me the opportunity to participate in this debate. A historic debate. In fact, something which this country has been waiting for the last 70 years. Even as this has been going on since the morning, sir, many of us members have been receiving messages from different parts of the country saying that they are extremely happy that with conviction this government has taken this historic step to enable greater integration of Jammu and Kashmir into the country. And if this is a major step, it's also a step which is a result of a lot of consultation. I know many members in the opposition have said, have you had any consultation at all? I'd like to draw their attention to say that in the manifesto of the BJP, where the consultations did happen, not just this time, it has been one of the commitments of the party since the time of Jan Sangh, and periodically if we take the name of Professor and also the youngest Vice Chancellor who was part of the ministry, which was of the, it was a united kind of a ministry which Jawaharlal Nehru ran the first cabinet, in which Shama Prasad Mukherjee was a minister. He was taken up to this cause, and we all know that he lost his life in very, very suspect circumstances, all in the name of wanting to keep one constitution, one Samvidhan, that is one Pradhan and one So if that is the kind of core belief that this party, Jan Sangh and also BJP subsequently have had, it is only as a result of constant consultation, discussion with people concerned, and even as latest as 2019, our manifesto during the Lok Sabha election was elaborately mentioning the need for the abrogation of 370, Article 370. All this is not without consultation. And therefore to think that we've just popped it out of some, suddenly from the hat like a magic rabbit, not at all. This has been on for a very long time. All of us have been talking about it. So that is one thing. And second,
haven't we seen over the years very progressive legislation, some of which happened even during Congress's time, like the Panchayati Raj Act 73rd and 74th Amendment to the Constitution? Did they get effectively implemented from the same time as was the rest of the country? No. There had to be a lot of persuasion, in spite of the merit of the issue, persuasion to make sure that such progressive Qanun, such progressive legislations which are happening in the entire country, for it to be implemented in Jammu and Kashmir. The latest being, and the one which all of us have been talking about for several years, is the equal right for women, which is not even today implemented in Jammu and Kashmir. Girls who are born, ladies who are born in Jammu and Kashmir are denied their property rights even as they get married to people who are settled outside of Jammu and Kashmir, which is a gross injustice. And that gross injustice has never been addressed with sincerity. If only that kind of an injustice can be addressed, even before we took it up today the House didn't have to see the scenes that it saw. And I can tell you, even with many of us traveling into Jammu and Kashmir, we've seen how scheduled castes, scheduled tribes, the Bakarwals about whom all of us speak, never had rights which were given to the scheduled caste and scheduled tribes in the rest of the country. Why should the special status of Jammu and Kashmir start and end with discrimination against women, discrimination against SC, discrimination against ST? If that is the special status, I don't think any one of us in Jammu and Kashmir with a difference, with inequality so profoundly written on its face. At least because of that, I would have thought members will forget the differences that they had otherwise ideologically and come together today to say we couldn't do it. 1994, which was passed in Lok Sabha here about Jammu and Kashmir, an integral part of India, and not just the Jammu and Kashmir which is with India now, but also that Jammu and Kashmir which is under the occupation, illegal occupation of Pakistan. It was a resolution passed in Parliament here, and if that is truly a resolution which was unanimously passed, shouldn't we be keeping up to the letter and spirit of that resolution? So neither from the point of human rights, nor from the point of view of equal rights for women, nor the point of view of positive affirmative action do we want to talk about Jammu and Kashmir. But we want to talk about it because we've created this whole hype that, oh, the special human right will be with it. I'm sorry, sir, we've heard several times people in Ladakh who live in a very large area where the population is so demanded that we want a unit territory status because it's too difficult to be administered. We've heard it over and over again, but we have not taken any step. Today, I'm glad after what is happening in this House and later with Lok Sabha, we will be able to meet that aspiration of every Ladakhi for a separate union territory for them. And lastly, sir, I'm glad to say the union territory with the legislature, elected legislature for the Jammu and Kashmir, inclusive of Jammu and Kashmir, which is occupied, parts of Kashmir which are occupied by Pakistan, and a union territory to take care of the needs of Ladakh. From the point of view of aspirations of the people, from the point of view of development, today we call Kashmir paradise. We all want it to be maintained with its pristine beauty. Not one person is willing to go and invest money even to build a hotel there, to receive the tourists. No investments are happening in Kashmir. Please. Unless we take this step, which I'm very glad the Minister has guided, and the Home Minister has brought up this amendments. With this development, development and integration of Jammu. Okay, Mani. Article 370 and 35A were the terms and conditions for the bilateral treaty which made accession possible. Where is the provision for a plebiscite? This is a historic wrong being done to a state promised autonomy.
अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। और अजी लोकतंत्र को मोदी सरकार